आज डाक बंगला पहुंच के अंदर एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब की तरफ से एक वर्कर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें तमाम वर्कर एक्स सरपंच जो हैं तशरीफ़ लाए थे और उनके हमरा सीनियर लीडर भी इस मीटिंग में तशरीफ़ लाए थे। जितने भी लोग मीटिंग में आए थे, उन्होंने सबसे पहले तो जनाब एमएलए हवेली एजाज जान साहब को उम्रा शरीफ की मुबारक दी, क्योंकि चौथी बार जो है वो उन्होंने उम्रा शरीफ जो है वो किया है। उसकी उन्होंने तमाम लोगों ने एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब को मुबारक दी। और आपको बताते चलें कि इलेक्शन के बाद आपने देखा ही होगा कि एमएलए हवेली जनाब एजाज जान साहब ने एक हुक्म दिया था अपनी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं कि मैं यहाँ पुंछ में अवेलेबल हूँ या ना हूँ, आपने हर महीने की एंडिंग पे एक जो है वो मीटिंग लेनी है। जो भी जिन जिन जो जो इलाकों से मीटिंग में लोग आएंगे, अगर उनकी कोई परेशानी हो मुझे बतानी है, फिर वो इंतज़ामिया तक मैं लेकर जाऊँगा। लेकिन आज एमएलए हवेली खुद 3-4 दिन पहले हो गए पुंछ में पहुँच गए थे, इसलिए ये मीटिंग 2 दिन लेट हुई। आज जाकर 3 तारीख को ये मीटिंग हुई। आप देख सकते हैं कि मीटिंग में तमाम एक्स सरपंच, सीनियर लीडर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग की सदारत बाग हुसैन राठौर कर रहे थे। उनके हमरा सैयद अनायत साहब भी थे और उनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी सीनियर लीडर हैं, शहजाद खान हो, पीर नसार साहब हों या बाकी जितने भी सीनियर लीडर हों, वो भी तशरीफ़ लाए थे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। आगाज करने से पहले परवरदिगार की उस इल्हामी किताब की चंद आयत मुबारक तिलावत की जाए, हुकूक अबदियत अदा होगा। मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अब्दुल हफीज साहब से, मौलाना अब्दुल हफीज साहब في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. ہمارے ڈسٹرکٹ سیکرٹری سید عنایت بخاری صاحب جو سادات سے ہیں، ان کے لیے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب کرانا نور کا. ساتھ میں بیٹھے ہوئے محترم جناب شمیم دار صاحب، والی صاحب، رینا صاحب، شرما صاحب، شہزاد خان جی، پیر نثار صاحب، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جناب رشید شاہ پوری صاحب کا پاور دیکھیے کہ آنظر ایم ایل اے صاحب نہیں بیٹھے جب تک رشید صاحب کو نے دکھایا. ہم ان کو بھی سلام کرتے ہیں. محترم جناب اسحاق خان صاحب بلاک صدر عبدالعاد بٹ صاحب، بلاک صدر جناب غلام حسین بٹی صاحب، الحاج محترم شفیع صاحب، معشوق خان جی، ہمارے جتنے بھی یہاں سارے ساتھی آئے ہیں، میرے پروندر جی ہمارے یوتھ کے پریزیڈنٹ ہیں، میں سب کو میری طرف سے السلام علیکم. قاضی صاحب، قاضی جاوید صاحب، صوفی قیوم صاحب، منشی خان جی، منظور ماہر صاحب، ابو صدیق جی، زمان صاحب، نجب الدین دار صاحب، نصیر خان صاحب. میں کس کس کا نام لوں؟ میں تو ایک ایک کو جانتا ہوں. بہرحال اگر کسی کا نام رہ گیا معذرت خواہ ہوں. سب سے پہلے ہمارے ڈسٹرکٹ سیکرٹری صاحب نے کہا، ہم دل کی اہمی گہرائیوں سے جناب اعجاز جان صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ایم ایل اے بننے سے بھی زیادہ خوش نصیب ہیں یہ لوگ. اس کا دعا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہاں سارے ہمارے علماء حضرات بیٹھے، پونچھ کی اس عوام کا ایک ایک حق ادا کیا ہے، چاہے وہ ہیلتھ کا معاملہ ہو، وہ جل شکتی کا معاملہ ہو، وہ فوڈ اینڈ سپلائی کا ہو، وہ ایجوکیشن کا ہو. ایک ایک بات پہ آپ بولے. مخالفین نے بھی کہا کہ اعجاز جان نے کمال کر دیا. یہی ہوتی ہے نمائندگی. اس کے بعد آپ دیکھیں کام انشاءاللہ آپ کے ہو رہے ہیں، ہوں گے. بہرحال جس آدمی کو اعجاز جان کی شکل پسند نہ ہو، نیشنل کانفرنس پسند نہ ہو، ہماری جماعت کی مضبوطی پسند نہ ہو، وہ اگر کہے تو اس پر کوئی قصور نہیں، کہہ سکتا ہے، اپوزیشن کا یہی نام ہے. لیکن ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عرصہ 2 مہینے کے اندر یہاں رہ کے جو کام کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے چند دن یا چند مہینوں کے بعد ہوگا. راتوں رات تو وہ نہیں ہوگا. جو سڑکوں کے پلان بنے ہیں، چاہے وہ اسٹیٹ سیکٹر کا ہو، پی ایم جی ایس وائی کا ہو، نبارڈ کا ہو، کسی بھی محکمے کا ہو، یا اس کے بعد اپنے پنچایتوں کا دیکھیں اس میں کس کس جگہ لوگوں نے کام کیے. ایک بات اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو پلان بنایا ورکروں کو اعتماد میں لے کے بنایا ہے، کہ اپنے ساتھیوں سے پوچھ کے. جس طرح سے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے وہ اعجاز احمد جان ہے، اور دوسرا اور آگے پارٹی کا ایم ایل اے جیران ملک ہے. وہی ایم ایل اے پوری اسمبلی میں اس بار جو ہے وہ چھائے رہے اور ہر ایک مدعے کو ٹچ کیا. جو ہمارے مسائل تھے ان کو انہوں نے اسمبلی میں بڑے طریقے سے رکھا اور وہ حل بھی کروائے. ہمارے حویلی کنسٹیچوئنسی کے نور نظر
जनाब एजाज जान साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब प्रधान साहब, मेरे पीर मुर्शद जनाब अनायत बुखारी साहब, मेरे दिल की धड़कन और हमारे सरपरस्त आला पार्टी के जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पाक राठौर साहब, मेरे भाई शमीन दार साहब, रवाज साहब, सरपंच बशीर साहब, मेरे साथ इधर अफसर साहब बैठे हैं, सामने साहब साहब हैं, उसके साथ अपने वकील साहब बैठे हैं, शबीर साहब हैं और वाज साहब हैं, मेरे बड़े भाई नजरुद्दीन दार साहब हैं, सरदार मोहम्मद माशूक खान साहब हैं और भट्टी साहब हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? आजाद साहब कह रहे थे कि टाइम की बड़ी किल्लत है, मैंने कहा लंच बना हुआ है, तो लंच की जगह है तो फिर नाम लेने के बगैर ये बड़ी नाराजगियाँ हो जाती हैं। मेरे पीछे मेरे छोटे भाई अजीज मीडिया के लोग बैठे हैं और उसके बाद ये क्या नाम है अपना खान साहब, अजमल खान साहब, जिसने बड़ी दमदार तकरीर जो है वो की है और मेरे भट्टी आपने बहुत अच्छा कहा है। मैं एक शेर से स्टार्ट करूंगा। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पर कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पे नहीं गिरता, गिरते हैं समुद्र में बड़े शौक से दरिया, गिरते हैं समुद्र में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समुद्र नहीं गिरता। लोगों ने मिलिटेंसी का भी डट कर मुकाबला किया और उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आज मैं इस स्टेज की रूह से हिंदुस्तान के वजीर आजम साहब को यह कहना चाहता हूं और हिंदुस्तान की फौज को हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का चाहे हिंदू है, यहाँ का चाहे मुसलमान है, चाहे यहाँ का सिख है, उसको सबसे पहले अपनी धरती सबसे प्यारा हमें हिंदुस्तान है और हमें हिंदुस्तान के लिए हम अपना एक एक खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हैं। हम फौज के साथ शाना बिशाना तैयार हैं। फौज को जहां भी चाहिए हम सब लोग क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी फौज के साथ, हिंदुस्तान के साथ, पार्टी से उठकर बिल्कुल शाना बिशाना तैयार है। हाथ खड़ा करके बताएं, बिल्कुल तैयार है, बल्कि अब यूटी है। लेकिन इसके अंदर जो ये वाक़ात 26 लोगों का हुआ, इसमें चाहे हिंदू हूं, चाहे मुसलमान हूं, चाहे सिख हूं, चाहे ईसाई हूं, हर मजहब के लोगों ने इसकी मजम्मत की है। और हम जनाब वजीर आजम नरेंद्र भाई मोदी जी से यह कहना चाहते हैं, या तो आप हिंदुस्तान के अंदर से इस्तीफा पेश कर दो, आप या आपके होम मिनिस्टर जो है वो इस्तीफा पेश कर दें, या वो लोग जो नहक्के लोग रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कत्ल हुआ, जिनके साथ जुर्म हुआ, उन लोगों की तहकीकात करके उनका जो कातिल है उसको निकाला जाए। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जितनी भी पार्टियां हों, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे कोई भी जमात हो, आज हमारे लिए कोई जमात नहीं है। हम नरेंद्र भाई मोदी आपके साथ खड़े हैं और आपकी फौज के साथ भी खड़े हैं। अगर कोई हस्ती बार बार आके रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर खलल अंदाजी डालती है, बेगुनाह लोगों को, मासूम लोगों को कत्ल करती है, तो उसकी जिम्मेदारी रियासत के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के वजीर आजम की है और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर की है।